Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hoping that you all are fine and doing well. If do you people remember, we have covered up 4 lectures up till now, and we have covered the basic introduction of microbiology and the second topic that was microbial ecology and diversity. Today I am here with the lecture number 5, naming classification of microorganisms. So if we talk about the classification, here is some history and some introduction about the classification of microorganism. Basically, according to your course content, we have to study various microorganisms like bacteria, algae, protozoa, fungi, archaea. So before going to discuss these microorganisms one by one, you people must have the concept of classification of microorganisms, or rather than organisms, so that you can understand which class you are going to study. So here I am here with the classification. If we talk about the living organisms are diverse in nature. Either these are plants, these are animals, or these are microbes. Every living organism has diversity of nature. This diversity is very much important regarding the role of the microorganisms or role of organism. Mean every organism has its own characteristics, and depending upon those characteristics, every organisms play a role in the nature. Like some are food, some are at basic food preparation, some are consumer. So every organism has its role. Arrangement of these microorganisms in various orders or various classes, uh, depending upon various bases, we classify the organisms. Either these are major organisms, microorganisms. Classification depends upon various types of features, either depending upon their differences, their morphology, their role. So according to different bases, different types of classification systems are there. So arranging these microbes in order or in hierarchy based on its similarity or differences in any characteristic make it easier to know and get access to all the microbes. So it's necessary to classify the organisms. First of all, if we see, here are 3 different scientists or different era which have proposed different types of classification. Like Greek philosopher Aristotle classified the living organisms as plants and animals around 200 years ago. Then there comes a scientist, John Ray. He defined species as similar patterns and genera for the group of containing closely related species. Then there is another scientist, Carolus Linnaeus, a very famous scientist of microbiology. Carolus Linnaeus proposed the science of taxonomy. Means he basically proposed the rules for the taxonomical categories of taxa, binomial nomenclature. Means basic concept of classification and giving the name to microorganism was proposed by this Carolus Linnaeus. Now, what is taxonomy? We will talk again and again taxonomy. Whenever we talk about the taxonomy, we have to understand 3 other terminologies: classification, nomenclature, and identification. So what is taxonomy? Taxonomy is basically giving names. Giving arrangement, giving names is referred as taxonomy. So taxonomy is basically originated from the Greek word taxis, means arrangement, and nomos means law. Taxonomy is defined as the science of biological classification. Taxonomy is orderly arranging organisms under the study into the groups of large units, so that the study can become easy. If we talk about the taxonomy, it consists of 3 interrelated parts, namely as classification. Classification is basically the orderly arrangement of organisms into groups, or you can say into taxas or taxons, based on the mutual similarity, evolutionary relationships. Depending upon their similarity, depending upon their evolution, these are arranged into various groups.
This is called as classification. Whenever the organism, depending upon their taxonomy, their structure, their evolutionary history, whenever these are placed into various groups, this is called as classification. What is nomenclature? Nomenclature is concerned with the assignments of name, assigning the names to the taxonomic groups in arrangement with the published rules. ठीक है, फर्स्टली हमने क्लासिफिकेशन देखा, हमने क्या कहा, क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी सिमिलैरिटी, उनके करेक्टरिस्टिक्स या उनकी एवोल्यूशन के बिहाफ पे हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन. जब भी ऑर्गेनिजम्स को उनके टेक्सचर, उनके सिमिलैरिटी या उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बिहाफ पे हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं, इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. ये क्लासिफाइड अरेंजमेंट, जब हम उसे कोई नाम देते हैं, असाइन करते हैं उस क्लास को कोई नाम, डिपेंडिंग अपॉन द पब्लिश रूल्स, जितने भी ये साइंटिस्ट ने रूल्स बनाए हैं, दैट इज रेफर्ड एज नोमेनक्लेचर. Identification is the practical side of taxonomy, the process of determining that a particular isolate belongs to a recognized class. अब उनके features के behalf पे उनको identify कर लेना, that comes under the identification. Clear? So taxonomy is basically giving names according to rules. ऑर्डरली अरेंजमेंट टेक्सोनमी है. टेक्सोनमी से रिलेटेड 3 अदर टर्मिनोलॉजीज है. क्लासिफिकेशन, उनके सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे उनको किसी ग्रुप में रखना, दैट इज क्लासिफिकेशन. उन ग्रुप्स को डिफरेंट नाम देना रूल्स के हिसाब से, नोमेनक्लेचर. और आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनके डिफरेंट जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बिहाफ पे उनको रिकॉग्नाइज करना, दैट इज आइडेंटिफिकेशन. नाउ द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. So I think you are already familiar. Different orders are there whenever we talk about the taxonomic hierarchy. Levels of classification. This was basically introduced by Carolus Linnaeus. I have told you that he is basically the famous scientist of microbiology. The main taxa or group in a classification are organized into several distinct ranks, starting with the kingdom and ending with the species. If you focus this picture, you will better understand the taxonomical hierarchy. If we see the bottom, this is kingdom. Kingdom is the most vast or major group. Then kingdom is divided into different phylums. Then phylums are subdivided into the classes. Classes are subdivided into the orders. Orders are divided into the families. Families are further divided into genus, and lastly the species. So species lies at the top while the kingdom lies at the bottom. The techniques for identifying or determining taxonomical characteristics. Basically, these are the features on which the taxonomy is defined. First of all, morphology. What is the shape? Eukaryote, prokaryote, size, physiology and metabolism. What type of physiology, what type of metabolism? Ecology, unka relationship, genetic analysis. These are the features depending upon the which the taxonomy is determined. So various divisions of life, various at different times, different types of classifications were proposed. 3 kingdom system was proposed, 5 kingdom system, 6 kingdom system, even 8 kingdom system was proposed in different eras by different scientists. I will just cover up here the 3 kingdom, 5 kingdom and 6 kingdom, and then in later slides we will just focus on the 5 kingdom system. So just for your interest, 8 kingdom system also exists. So 3 kingdom system was firstly proposed by Ernest Haeckel in 1866. He divided all the living organism into plants, animals and protista to include the unicellular organism. He just proposed this protista for the unicellular organism. Then 5 kingdom system was there. Whitaker 1960s, based on the cell type organization and the means of nutrition acquisition. He divided the organisms into Monera, Protista, fungi, plantae and animalia. So here is little bit more classification for the microorganism, Monera, Protista and fungi.
Six kingdom system was proposed by the scientist. It differs from the five kingdom system by dividing the prokaryotes into bacteria and archaea. This is basically the sixth kingdom. He divided the first kingdom into two further kingdoms, bacteria and archaea, protista, fungi, plantae, and animalia. Here is also the pictorial depiction of these three descriptions. Three kingdom system consists of bacteria, archaea, and eukaryotes. Six kingdom system consists of bacteria, archaea, protista, plantae, fungi, animalia, while the traditional five kingdom system, the most famous kingdom system, consists of monera, protista, plantae, fungi, and animalia. So diagrammatic depiction of this five kingdom system, animalia, plantae, and other are here. So five kingdom classification was proposed by R.H. Whitaker in 1969. The main criteria for the five kingdom classification was cellular organization, means what was the cell structure, how was the body shape, mode of nutritional pattern of the organism. So these were three bases: structure, body shape, mode of nutrition, according to which this Whitaker classified the all organism into five different classes. This system places all the living things into one of the five basic kingdoms. The first one kingdom is Monera or Prokaryote. This is Prokaryote, Monera, then Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Here is again diagrammatic depiction of five kingdom classification. If we talk about the Monera, here are the characteristics of Monera mentioned. Monera is the system which is present at the base. It is basically prokaryote type, means no clear cut nucleus or the well defined nuclear material. It absorbs and photosynthesis, motile, then नॉन मोटाइल एंड एसेक्सुअल. ठीक है, प्रोकैरियोट होते हैं मींस बहुत वेल डिफाइंड, इनमें सेल स्ट्रक्चर नहीं होता. ठीक है, ये फूड, बनी बनाई फूड एब्जॉर्ब भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, यानी खुद से भी फूड बना सकते हैं और बनी बनाई भी ले सकते हैं. मोटाइल भी है एंड नॉन मेटाइल, दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं, और इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल. ठीक है जी. मोनेरा सबसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे बेस पे है. मोनेरा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोट टाइप है. प्रोकैरियोट मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था, यानी जिनमें बहुत क्लियर कट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मटेरियल या सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल एवोल्यूशनरी स्टेज है लाइफ की. तो पहला करेक्टरिस्टिक इनका क्या है मोनेरा का? फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर है. दूसरी बात आ जाती है फूड की. फूड फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं और दूसरी जगहों से भी ले सकते हैं. ठीक है, फिर आ जाती है इनके मोशन की बात. मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल, एंड देन रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सिर्फ. ठीक है, सेकंड थोड़ा इसकी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आ जाती है लाइफ की, दैट इज प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट क्या है, अब थोड़ा देखें एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. यूकैरियोट यानी क्लियर कट मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मटेरियल है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं. ठीक है, प्रोटिस्ट these are unicellular and multicellular as well. सेल की अगर बात करें तो यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर, जबकि मोनेरा आपने देखा सिर्फ यूनिसेलुलर है. ठीक है, these can absorb food, ingest food और फोटोसिंथेसिस. वही दोनों करेक्टरिस्टिक्स याद, एब्जॉर्ब और इंजेस्ट भी कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं. यहाँ थोड़ी सी एडवांस फॉर्म आ गई. रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल दोनों हो गई. अब आपको डिफरेंस पता लग गया मोनेरा में प्रोटिस्टा में. मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है और यूनिसेलुलर है सिर्फ. फूड बना भी सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, मोटाइल हैं और नॉन मोटाइल दोनों हैं, और सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. प्रोटिस्ट थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, इसलिए यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं, फोटोसिंथेसिस भी है, फूड एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, और सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोडक्शन है. उसके बाद उससे एडवांस्ड फॉर्म आ जाती है फंजाई. फंजाई आर यूकैरियोट एंड ओनली मल्टीसेलुलर. ये यूनिसेलुलर अब खत्म हो गए, एब्जॉर्ब्स फूड ओनली. ठीक है, ये अपनी फोटोसिंथेसिस फंजाई खुद नहीं कर सकते. नॉन मोटाइल है एंड प्रोडक्शन इज सेक्सुअली. ठीक है, फंजाई नॉन मोटाइल और सेक्सुअल प्रोडक्शन. एनिमल्स की बात आ गई. यूकैरियोट
मल्टी सेलुलर ओनली कैन इंजस्ट फूड, आपको पता है एनिमल अपना फूड खुद नहीं बना सकते। मोटाइल है एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। उसके बाद प्लांट किंगडम आ गया, प्लांट्स आ गए, यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, फोटोसिंथेसिस इनका सबसे बड़ा फीचर, देन नॉन मोटाइल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन हमने इसलिए पढ़ी कि आगे आपने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासेस पढ़नी है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, तो आपको पता हो कि हम कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किंगडम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एन अदर very famous chart about the 5 kingdom classification। इसमें हम हर किंगडम की मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। अगर हम ये बेसिकली अगर आपको रिटर्न में आ सकता है तो राइट द डिफरेंसेस बिटवीन 5 किंगडम्स, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें मोनेरा की, सेल टाइप यूनिसेलुलर है एंड प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर मोनेरा हमेशा यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है, जबकि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर तो हैं बट यूकैरियोट्स। फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर नहीं है, यूकैरियोट्स हैं लेकिन नॉन ग्रीन्स हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जबकि प्लांटी मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स हैं। एनिमेलिया क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात आ गई, मोनेरा आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, खुद भी बना सकते हैं, दूसरों से भी ले सकते हैं। प्रोटिस्टा आर आल्सो ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। फंजाई क्या है, these are saprophytic और parasitic, sometimes symbiotic relationship है। ये इनमें ग्रीन मटेरियल नहीं है, इन्होंने हमेशा दूसरों से ही सिम्बायोसिस से ले लें या जिस तरह भी ये दूसरों से ही फूड लेते हैं, ठीक है। Then plants, these are purely autotrophs. Mode of nutrition of animals, heterotrophic, ठीक है, खुद भी दूसरों से फूड लेते हैं और दूसरों का फूड बन भी सकते हैं, खुद प्रोड्यूस कतन नहीं कर सकते फूड के तौर पे। हेटेरोट्रॉफिक का क्या है, दूसरों से ले रहे हैं और दूसरों के फूड के तौर पे सर्व भी कर रहे हैं। नाउ अबाउट द बॉडी फीचर, बॉडी क्या है मोनेरा की, लेक सेल वॉल, डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब लेक कर रही हैं। डिफाइंड सेल वॉल भी नहीं है, सेलुलर न्यूक्लियस भी नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। But when we move to the protista, इसकी बॉडी क्या है, sometime organisms uses pseudopodia और सीलिया और फ्लैजिला फॉर द मूवमेंट। प्रोटिस्टा में लिटिल बिट मूवमेंट है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट नहीं है एज दैट ऑफ एनिमल्स। इनमें क्या है, लिटिल बिट मूवमेंट है, और वो जो मूवमेंट के ऑर्गन्स क्या है, सूडोपोडिया, ऐसे जैसे जस्ट आउटर प्रोजेक्शंस हैं, धागे हैं, थ्रेड्स हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला, इनके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो लिटिल बिट मूवमेंट और लिबर्टी को देते हैं। देन फंगस, फंगस इज मेड अप ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स कॉल्ड द हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम, ठीक है। उस हाइफी के बिहाफ पे जहां तक इनकी लेंथ जाती है वहां तक हम कंसीडर कर लेते हैं कि जी फंजाई प्रेजेंट है, बट स्पेशली दीज आर नॉन मोटाइल। Plant exhibits high level of tissue differentiation and have specialized body organs, ठीक है जी। ये बहुत अच्छे defined organisms हैं, इनमें tissues हैं various type के और various special bodies हैं या organelles हैं plants में। Then body of animals exhibit high level of tissue differentiation and have specialized body organs. They have well developed nervous system as well. ये सबसे advanced form है सिस्टम की, ठीक है। देन एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल ऑफ मोनेरा इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा की एग्जांपल क्या है, अमीबा, एंड देन पैरामेंसियम, यूग्लिना, यूग्लिना भी पढ़ सकते हैं, यूग्लिना, ठीक है जी। फंजाई की एग्जांपल क्या है, यीस्ट, राइजोपस, मशरूम्स एंड मोल्ड्स। Plants की example में all types of trees, plants and shrubs. Animals, fish, insects, animals, humans, birds, all comes in the animals. So basically this is the part of your syllabus, bacteria. In here we will just see a little bit introduction of bacteria. आपको उसकी basic understanding आ जाए, उसका structure क्या है, function क्या है, ये सारा हम इसमें एक छोटा सा introduction जो है वो cover करेंगे। First of all, the definition of bacteria. Bacteria is prokaryotic microorganism.
It is a single-celled microscopic organism that lack nuclei and other organized cell structure. Bacteria, हमने कहा ना जो first one classification है Monera, ये हमने जो पहली classification देखी है Monera kingdom, पहला kingdom जो हमारा Monera, ये मोनेरा में एग्जिस्ट करता है. ठीक है जी. बैक्टीरिया क्या है? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट लेक्स इन न्यूक्लियाई एंड अदर ऑर्गेनेलीज. Bacteria is the plural form of bacterium. While several bacterial species are pathogenic, means they are capable of causing the various type of diseases. Most are non-infectious and many have critical roles in the decay, fermentation, nutrients recycling, and nitrogen fixation. Bacteria are usually classified as gram-positive bacteria, gram-negative bacteria on a basic microbiological staining procedures called the gram staining. They come in variety of shapes and size. So this is little bit introduction. First, here is the definition. The microorganism, which is very much small in size, cannot be seen in the naked eye, and this is called as bacteria, plural of singular of which is bacterium. Here are the some features. You can see that bacteria can be pathogenic and can be non-pathogenic. Pathogenic means they are capable of causing diseases, while non-pathogenic mean that they cannot cause the disease. When they are not causing disease, they can have various other roles in the nature, like they can play very important role for the decaying. That is why no so much beneficial effects are also there. Microorganisms or bacteria can also play a role in the fermentation. They can also play a role in the nutrients recycling. Nitrogen fixation is an also very much important role of bacteria. They can, on the basis of staining, just for their identification, they can be classified into the gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. This is the basically staining procedure which you will see in your lab in detail. They come in variety of size and shape. Depending upon the size and shape, they are also ranging very much sizes and shape. Like they can be round, they can be spherical, they can be oval, they can be spiral, and the size also ranges in variety of sizes. This is basically general overall structure of bacteria. You can see nuclear material is just spreaded here without any nuclear membrane. Here are cytoplasmic inclusion for the absorption of the food. Here are small protein units called as the ribosomes, and here are the flagella, which imparts them the liberty to move. Here is the cell wall, this white one. There is the capsule, the outermost structure, and these smaller projections are called as pilus, or plural of which is pili. Plasmid is here, which is containing some DNA material. This is the ribosome and cytoplasmic inclusion. Now this red one is chromosomal DNA having the nuclear material. This is about the generalized structure of a bacterium. Now shapes of bacteria. Here are bacteria. If we talk about this, these are various. We can also cover it as the classification of bacteria depending upon the shape. You can cover it as well. हम इसको पेपर में भी ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं. क्लासिफाई द बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन द शेप्स. ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये डिफरेंट शेप्स है. ए मेंशन किया हुआ है यहाँ नीचे. ए क्या है? माइक्रोकोकस. द राउंड शेप इज कॉल्ड एज कोकाए, और सिंगल को हम कोकाए कहेंगे, प्लूरल को जो है वो कोकस कहेंगे, और प्लूरल को कोकाए कहेंगे. ठीक है, तो ये शेप क्या है? माइक्रोकोकस. माइक्रोकोकस. ये क्या है? डिप्लोकोकस. है तो गोल लेकिन सेंटर से डिवाइड हुआ. तो पहली क्लास क्या है? कोकस, कोकाए. डिप्लोकोकाए या डिप्लोकोकस. ठीक है, और फिर क्या है? स्टेफाइलोकोकस. ये जो है गुच्छे में जो भी होंगे, ये तो सिंपल अलग अलग है ना, तो इसीलिए हमने इनको माइक्रोकोकस कह दिया. जो बंच में होंगे दैट इज कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोकाए या स्टेफाइलोकोकस. ठीक है, और अब यही कोकाए शेप तो है, लेकिन अगर तो बंच की शेप में तो हमने उसको स्टेफाइलो कह दिया, स्टेफाइलोकोकस. और अगर यूं चेन की शक्ल में है तो फिर स्ट्रेप बना मैंने, तो स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है,
अब ये जो रॉड शेप है, सिंपल रॉड शेप, बेसिलाई या बेसिलस, और अगर ये बेसिलस थोड़े इस तरह देखें, जैसे एक साइड पे एक थोड़ा सा कांटा सा है, कॉर्नी शेप है, तो इस सूरत में ये कॉर्नी बैक्टीरियम, ठीक है, बेसिलस कॉर्नी बैक्टीरियम, ये कॉर्नी बैक्टीरियम, ठीक है। उसके बाद जी क्लास आ गई हमारे पास, हाँ जी, ये जी वाली क्लास आ गई, बेसिलस टाइफी, इसे हमने क्या कहना है, टाइफी। ये सेंटर में आपकी कोकाया और उसके साथ ये जो ब्रांचेस से निकली हुई हैं, दिस इज टाइफी बेसिकली। बेसिलस चूंकि राउंड है और ये प्रोजेक्शंस हैं, इसलिए टाइफी, बेसिलस टाइफी। और ये एच टाइप प्रोटियस, प्रोटियस ये देखिए जो बिल्कुल इस तरह का है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्शंस हैं, ये प्रोटियस टाइप है। स्पाइरलम, दिस वन इज स्पाइरलम, स्पाइरल शेप है ना, स्पाइरलम, ये देखें स्पाइरलम, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जे, ये है सिफिलिस बैक्टीरिया, जे सिफिलिस बैक्टीरिया, दिस इज सिफिलिस बैक्टीरिया। दिस के इज नाइट्रोजन फाइंडिंग बैक्टीरिया, ये देखिए इसके साइडों पे ऐसे हैं और स्पाइरल शेप है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में है, यूज होता है नाइट्रोजन फाइंडिंग बैक्टीरिया। then there comes the L shape, थायोस्पाइलम, थायोस्पाइलम, ठीक है, ये क्या है जी, थायोस्पाइलम, एक साइड पे ही सिर्फ प्रोजेक्शन है, इसलिए हम इसे थायोस्पाइलम कहते हैं। देन दिस वन इज बैलून शेप है, ओवल शेप और सिंगल साइड पे है, दिस इज विब्रो, दिस इज विब्रो, ठीक है। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया depending upon the shapes. Now depending upon the sizes, we will see Kokai. Kokai are the sphere shape with the diameter ranging between 0.75 to 1.25 micron meter and average of 1 micron meter. Kokai spherical shape and size range 0.7 to 1.25 micron. Bacilli are the rod shape, length ranges from 2 to 10 times that of the width. Then coco bacilli are very short, very much short bacilli. Filaments are long threads of bacilli which have not separated into the single cell. Now, where are the bacteria found? Environmental existence of bacteria. Bacteria are found everywhere in the environment, under the earth to a distance of 400 meters. अगर हम डीप अर्थ की बात करें तो अगर आप 400 मीटर्स डेप्थ में भी चले जाए वहां पे बैक्टीरिया मौजूद हैं। इन द एयर, एवरीवेयर इन द एयर, हर एयर में बैक्टीरिया किसी न किसी हद तक है। इन एट ऑल्टीट्यूड्स, जितनी मर्जी ऑल्टीट्यूड्स हैं वहां पे बैक्टीरिया। एट हाई टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर पे वो हैं जो हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अराउंड द क्रेटर्स, इन द पोलर रीजन्स, objects within the objects, animals in the digestive tract, in their respiratory system, and in their diets. Then carbon fixation, carbon dioxide and produce oxygen, ठीक है। ये यानी if we talk about their existence everywhere in the earth, in whole universe, bacteria are present, air में, soil में, फूड में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, हाई अल्टीट्यूड्स में, वाटर में, हर जगह जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयर फंक्शन, ये स्ट्रक्चर हमने पीछे भी देख लिया है। हमने कहा था आउटर मोड्स जो है वो कैप्सूल है, फिर साइटोप्लाज्म है, उसमें राइबोसोम है, डीएनए मटेरियल है, ये डिफरेंट टाइप्स का इसका है। अब हम वन बाय वन उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। फ्लैजिला, the singular of flagella is called as flagellum. Flagellum are made up of a class of linear proteins called as anchor. The flagellum and enables it to whirl यानी राउंड कर सके about its axis like a प्रोपेलर, जिस तरह प्रोपेलर होता है धकेलना, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लैजिला है क्या, इफ वी टॉक अबाउट इट्स नेचर, ये एक लीनियर प्रोटीन है, ठीक है, लीनियर प्रोटीन है। The basal body travels the cell wall and the cytoplasmic membrane to anchor the flagellum, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, नेचर हमने देख ली, प्रोटीनेशियस है, कहाँ होती है, इसकी बेसल बॉडी बाहर वाली सेल वॉल से जाके अंदर बॉडी तक जाती है, और इसका फंक्शन क्या है, इट इनेबल्स टू विरल और टू प्रोपेल, उसको लिटिल बिट मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। फ्लैजिला
flagellated bacteria are described as monotrichous, lophotrichous, peritrichous, depending on how the flagella are arranged. ठीक है, फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है? अगर एक ही फ्लैजिला है और एक कॉर्नर पे है वो मोनोट्राइकस है, लोफोट्राइकस अगर दोनों साइड्स पे है, पेरिट्राइकस चारों तरफ है, डिपेंडिंग अपॉन ये बेसिकली फ्लैजिला कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक है, दो है, साइड्स पे है, कॉर्नर्स पे, उसके बिहाफ पे हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं मोनोट्राइकस में, लोफोट्राइकस में या पेरिट्राइकस. ठीक है जी. फंक्शन क्या है? फ्लैजिला गिव बैक्टीरिया द एबिलिटी टू मूव एंड परफॉर्म द एक्टिविटी. ठीक हो गया जी. फ्लैजिला का आपको पता चल गया. आउटर प्रोजेक्शंस हैं जो सेल वॉल पे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं. नेचर क्या है? लाइपोप्रोटीन्स हैं. फंक्शन क्या है? ये उन्हें लिबर्टी देते हैं. और फ्लैजिला के बिहाफ पे हमने देखा उन्हें हम मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरिट्राइकस में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ये फ्लैजिला की उन्होंने थोड़ी बहुत जो है वो शक्लें ये देखिए, ये मैं आपसे कह रही थी ना, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरिट्राइकस. हर चारों तरफ है पेरिट्राइकस, एक तरफ है लोफोट्राइकस और सिर्फ सिंगल है वो मोनोट्राइकस. ये फ्लैजिला का बहुत डीप स्ट्रक्चर है, आपको इतनी डीप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है वैसे वैसा ही जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सारा. ठीक है जी. अच्छा, मोनोट्राइकस है, इस तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड की तरफ मूवमेंट है, टंबल शेप मूवमेंट है. ठीक है, और फॉरवर्डिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ये फिर टंबल शेप मूवमेंट है. नाउ द कैप्सूल, सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया. अब तक हमने बैक्टीरिया के एक स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ ली है, फ्लैजिला. अब दूसरा स्ट्रक्चर है कैप्सूल. कैप्सूल इज द मोस्ट बैक्टीरिया, कैप्सूल ऑफ मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ अ पॉलीसेक्राइड. फ्लैजिला क्या था? हमने कहा लाइपोप्रोटीन्स था. कैप्सूल किससे बना है? आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का. कैप्सूल इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर of any bacteria and made up of polysaccharides. The bacteria of a single species can be classified into different capsular serovars or serotypes based on the fine chemical structure of this polysaccharide. जिस तरह हमने फ्लैजिला कहा लाइपोप्रोटीन तो है, लेकिन फ्लैजिला की प्रेजेंस के बिहाफ पे हम कह रहे थे मोनोट्राइकस, पॉलीट्राइकस या लोफोट्राइकस. ठीक है, इसी तरह कैप्सूल जो है पॉलीसेक्राइड से बनता है. इस पॉलीसेक्राइड के क्या नेचर है, इस बिहाफ में हम कैप्सूल शेप बैक्टीरिया को भी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, पहला फंक्शन क्या है कैप्सूल का? अटैचमेंट टू द सरफेस. ये कैप्सूल जो है बैक्टीरिया को एबिलिटी देता है कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ बैक्टीरिया अटैच कर सके. दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फेगोसाइटोसिस यानी इनगल्फमेंट, एसोसिएशनली किलिंग और डाइजेस्टिव. तीसरा फंक्शन क्या है? रिजर्व्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेसिकेशन. ठीक हो गया. जनरल कैप्सूल का इंट्रोडक्शन क्या है? कैप्सूल इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. नेचर क्या है? पॉलीसेक्राइड से बना होता है और इस पॉलीसेक्राइड के बिहाफ पे इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं वेरियस बैक्टीरियाज में. ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. अब इसका फंक्शन क्या है कैप्सूल का? पहला फंक्शन तो ये है कि ये अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है. बैक्टीरिया किसी भी चीज के साथ अपने कैप्सूल की मदद से अटैच हो सकता है. दूसरा, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट किस चीज से करता है? फैगोसाइटोसिस से, कोई दूसरा उसको इनगल्फ ना कर सके, कोई दूसरा उसको खा ना सके. ठीक है, कुछ यानी इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन मिल रही है किलिंग से, डाइजेशन से. इस कैप्सूल की वजह से वो अटैच हो रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ और अपनी फूड ले रहा है. इस कैप्सूल की वजह से ही वो बच रहा है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको इनगल्फ ना करें, खाए ना. रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेसिकेशन. ठीक है, इसके अलावा इसमें फूड भी स्टोर होता है और ये उसको ड्राई होने से बचाता है. ये इसके फंक्शंस है कैप्सूल के. ये आपको बेसिकली ग्राम स्टेनिंग में दिखा रहे हैं. ये कैप्सूल बैक्टीरिया, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं. ये सेंटर में बैक्टीरिया और उसके इर्द गिर्द ये कैप्सूल है जिसके हमने फंक्शन ये पढ़े कि अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा और उसको इनगल्फमेंट से या डिस्ट्रक्शन से और ड्राइंग से बचाएगा और इसमें फूड भी स्टोर होता है. ठीक है जी. अब उससे इनर स्ट्रक्चर नेक्स्ट टू कैप्सूल, जो कैप्सूल से अंदर वाली स्ट्रक्चर है या वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन in bacteria are composed of phospholipids containing a polar group attached to a 3-carbon glycerol backbone.
These are also there are also two fatty acid chains dangling from other carbons of glycerol. The phosphate end of the molecule is hydrophilic and is attracted to the water, while the fatty acids are hydrophobic. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने कहा कि कैप्सूल के अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अब उस कैप्सूल पॉलीसेक्राइड था, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है. ठीक है, चूंकि लिपिड से बना होता है तो बिल्कुल लिपिड्स की तरह एक इसका हेड होता है, एक इसकी टेल होती है. ठीक है, द फॉस्फेट एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक, यानी ये अटैच होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग है. जो इसका हेड है वो वाटर लविंग है, जबकि इसकी टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन बात हो रही है. मेम्ब्रेन also contains proteins, typically 20 to 30% of membrane. Most of them are placed in the membrane so that the hydrophobic amino acids associate with the lipids in the membrane and the hydrophilic amino acids are outside the membrane interacting with their cytoplasm. ठीक है, हाइड्रोफोबिक एंड्स और हाइड्रोफिलिक एंड्स. अब फंक्शन क्या है? The plasma membrane is selectively permeable in that it helps to control what moves into and outside of the cell. फ्लैजिला पढ़ा हमने. ठीक है, हमने कहा लाइपोप्रोटीनेशियस था, सबसे आउटर प्रोजेक्शन है और मूवमेंट देता है. उसके बाद हमने कैप्सूल पढ़ा. कैप्सूल हमने कहा कि पॉलीसेक्राइड है, उसको कवर किया हुआ होता है उसने, तो उसको अटैचमेंट देता है, इनगल्फमेंट से बचाता है, फूड स्टोर करता है. तीसरा फंक्शन स्ट्रक्चर अब हम ये पढ़े हैं लाइपोप्रोटीन सॉरी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, कहा कि जी लिपिड स्ट्रक्चर है बेसिकली. तो लिपिड स्ट्रक्चर होने की वजह से हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं इसके, और इसका फंक्शन क्या है, ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होने की वजह से मूवमेंट को सिलेक्ट करता है, सिलेक्टिव मूवमेंट अलाउ करता है. यानी कौन सी चीजें हैं जो पेनिट्रेट होके बैक्टीरिया के अंदर जा सकती हैं और कौन सी चीजें हैं जो पेनिट्रेट होके बैक्टीरिया के से बाहर आ सकती हैं. मसलन ये इस बात को डिसाइड करता है कि अगर बैक्टीरिया वाटर वाले इन्वायरमेंट में है तो बहुत ज्यादा वाटर जो है वो ऑस्मोसिस से अंदर जाके अंदर चला जाए तो बैक्टीरिया बस्ट हो जाएगा. ये उस वाटर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. इसी तरह जो इनके अंदर फूड है, अगर वो बहुत ज्यादा बाहर ट्रैवल करने लग जाए तो इनका जो है वो फूड में डिप्लीशन हो जाएगी और बैक्टीरिया जो है वो डाई हो जाएंगे. तो सिलेक्टिव मूवमेंट अलाउ करती है ये मेम्ब्रेन. ठीक है, मेम्ब्रेन की हमने नेचर पढ़ी. मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है, तो हेड और टेल है बिल्कुल लिपिड की तरह. हाइड्रोफोबिक टेल है, वाटर को रिपेल करती है. हाइड्रोफिलिक हेड है, ये देखें पिक्चर में भी हाइड्रोफिलिक हेड है, वाटर लविंग, और वाटर नॉन लिविंग टेल है. तो ये इनका अरेंजमेंट होगा, किस तरफ हेड है किस तरफ टेल है, उस भी हाफ पे बैक्टीरिया डिसाइड करेंगे कि हाइड्रोफोबिक है हाइड्रोफिलिक है. तो बेसिक फंक्शन इसका क्या हो गया, सिलेक्टिव मूवमेंट ऑफ मटेरियल. मटेरियल कौन से अंदर जाएंगे कौन से बाहर आएंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है. ये सेलुलर मेम्ब्रेन का बिल्कुल ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है. देखें फास्फो, मैंने कहा था ना हेड, ये हेड ऊपर की तरफ है, टेल्स अंदर की तरफ, हेड. लिपिड, इसमें फिर हमने कहा प्रोटीन्स भी हैं, ये एम्बेडेड प्रोटीन्स भी हैं 20 to 30%. ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है. नाउ प्लाज्मिड या क्रोमोसोम. The cellular nucleus in prokaryote consists of a tangle of double-stranded DNA, not surrounded by a membrane and localized in a cytoplasm. ठीक है, एक इसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, या उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं. ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है लेकिन नॉट enclosed by any type of membrane and it is localized in the cytoplasm. membrane bounded material नहीं होता, साइटोप्लाज्म में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है. और ये है क्या, बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड और क्रोमोसोम. क्लियर हुआ? प्लाज्मिड या क्रोमोसोम क्या है, इनका न्यूक्लियर मटेरियल है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है लेकिन किसी भी मेम्ब्रेन ने उसको बाउंड नहीं किया हुआ और वो प्लाज्मा में कहीं भी लोकेट हो सकता है. The formed long DNA protein fibers are called as
chromatin. Each fiber builds also a so-called chromosome. The plasmids of the human pathogen bacteria often bear important genes determining the phenotype of their cell. रेजिस्टेंट जीन्स, विरुलेंस जीन्स, ठीक है, ये प्लाज्मिड के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के जीन हो सकते हैं जो डिजीज डिटर्मिनिंग हो सकते हैं इन केस ऑफ पैथोजेनेसिस। अच्छा जी, अब ये है हमारे इसके फीचर्स, फंक्शंस जो हैं। The single most important purpose of the genetic material of any cell is that it holds all the information necessary for the cell to carry out its many functions. The sequence of the bases in the DNA contains this information of genetic code. Generally, this is translated into the messenger RNA and then into the protein that can carry out the many necessary functions of the cell. चलें, अब डीएनए की बात होगी। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने कहा न्यूक्लियर मटेरियल। अब इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली इसमें जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनके ऊपर जेनेटिक कोडिंग होती है कि उसने कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है, उसके जीन्स क्या होंगे, यानी वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है कि नहीं है, वो फंक्शनल बैक्टीरिया है। तो सारी जो है डीएनए के अंदर जो मैसेज होता है वो इनकोड होके आरएनए बनता है और उस आरएनए के मुताबिक उसकी सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं। Examples of advantages plasmids best how on the host. देखो बेल हो रही है नीचे। Examples of the advantages plasmids: antibiotic resistant. Some plasmids are antibiotic resistant. Some plasmids code for the proteins that degrade antibiotics. A big advantage for the pathogen. अच्छा जी, ये जो अभी हमने पीछे प्लाज्मिड पढ़े हैं बेसिकली उसके फंक्शंस बता रहे हैं। प्लाज्मिड क्या करते हैं? कोड फॉर द प्रोटीन्स, या तो उन्होंने अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटीन्स बनाने होते हैं या वो डिग्रेड करते हैं एंटीबायोटिक को, दैट इंक्रीजेस देयर पैथोजेनिसिटी। सम इनकोड फॉर द प्रोटीन्स व्हिच confer virulence factor on the host. For example, E. coli plasmids contain ENT protein 307 code for the enterotoxin which make E. coli pathogenic. इसी तरह ये बहुत ज्यादा आपके कंसर्न की बात नहीं है। बेसिकली ये है कि वो ये कहते हैं कि जो प्लाज्मिड है वो इनकोडिंग कर रहा होता है। हर प्लाज्मिड ये बताता है कि वो बैक्टीरिया का फंक्शन क्या है। जैसे ई कोलाई है वो पैथोजेनेसिस कर रहा है, ठीक है। नाउ द साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, ये जो सेल के अंदर मटेरियल है साइटोप्लाज्म और उसमें प्रोटीनेशियस राइबोसोम्स हैं, उनका क्या फंक्शन है? द साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्यूट लो एंड सोल्यूट हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस। साइटोप्लाज्म में लो एंड हाई सोल्यूट वेट सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आरएनए एंड अप्रोक्सीमेटली 20,000 ribosome per cell. These are RNA in nature and per cell 20,000 ribosomes are present. Bacteria have 70S ribosomes comprising of 30S and 50S subunit. And function of these ribosomes are as the organelles for the protein synthesis. ठीक है, राइबोसोम्स क्या है? अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ जो है सोल्यूट लो और सोल्यूट हाई मॉलिक्यूल वेट सब्सटेंसेस होते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट और हाई मॉलिक्यूलर वेट के कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है जिन्हें हम आरएनए कहते हैं। सो आरएनए क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट या हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं आरएनए, राइबोसोम न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। और अगर हम सेल की बात करें तो यूजुअली एक बैक्टीरियल सेल में 20,000 जो है वो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो 70S राइबोसोमल सब यूनिट से मिलके बने होते हैं और ये 70S जो है फर्दर कंबाइन होके 30+50 सब यूनिट और 50 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीनेशियस ऑर्गेनेलीज हैं बैक्टीरिया के, ठीक है जी। ये भी आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर है कि 70S हमने कहा 50S और 30S सब यूनिट से मिलके बना। अब एक और स्ट्रक्चर दैट इज सेल वॉल, म्यूरिन सेल वॉल सिंक्रोनाइज अगर हम कहें पेप्टाइडोग्लाइकैन से मिलके बनती है।
The most important structural element of the bacteria is the wall, is murin, a net-like polymer material surrounding the entire cell wall. So अगर हमने definition की बात करें cell wall क्या है? Net-like polymeric material surrounding the entire cell. It is referred as cell wall. और cell wall बनी किससे होती है? It is basically a murine. ठीक है, म्यूरिन किसे कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकैन से बना हुआ एक मटेरियल है जिसे म्यूरिन कहते हैं. ये म्यूरिन पॉलीमेरिक मटेरियल है जिसने पूरे सेल को राउंड किया होता है, इसे हम कहते हैं सेल वॉल. It is made up of polysaccharide chain cross linked by the peptides. पॉलीसेक्राइड है पेप्टाइडोग्लाइकैन. ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूरिन, ये उसका स्ट्रक्चर उन्होंने दिया हुआ है किस तरह से बनी हुई है. म्यूरिन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बेसिकली म्यूरिन, और ये सारे मिलके उन्होंने सेल वॉल बनाई थी. अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, हमने कहा था दो तरह के बैक्टीरियाज हैं. द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, द म्यूरिन the murine speculus may consist of as many as 40 layers, 15 to 80 nanometer thick. The membrane lipotissue acids, lipotico acids इसको कहते हैं basically, lipoticoic acids are anchored in the cytoplasmic membrane, whereas the cell wall ticoic acids are covalently coupled to the murine. The physiological role of this ticoic acid is possibly they regulate the activity of the autolysins that secrete grown and transverse fusion process in the cell. Ticoic acids can active the alternative complement pathway and stimulate the macrophages to the secrete the cytokine. Cell wall associated proteins frequently function as the pathogenicity determinants, specifically adherence, phagocytosis, protection. ये सेल वॉल का उन्होंने ग्राम पॉजिटिव का फंक्शन बताया हुआ है. ये एक एडिशनल है, जस्ट आपके इंट्रोडक्शन के लिए है, आप इसको गो थ्रू कर लें. The cell wall of the gram-negative bacteria, here the murine is only about 2 nanometer thick. The outer membrane is the salient structure element. It contains numerous proteins, 50% by mass, as well as the medically critical liposaccharides, OMPA, outer membrane protein A, and the murine lipoprotein form a bond between the outer membrane and the murine. Outer membrane associated proteins constitute the specific structure that enables bacteria to attach to the host cell. ये basically जो आपको है ना ग्राम सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और ग्राम, ये यहाँ पे आपको भी इतना समझ नहीं लगेगा. इसकी मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन, आपका इसी वीक प्रैक्टिकल है ग्राम स्टेनिंग का, उसमें जब मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरी थ्योरी इंशाल्लाह साथ होंगी तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. Lipopolysaccharides, the molecular LPs, this molecular complex also known as endotoxin is comprised of the lipoid A, the core polysaccharide. Lipoid A is responsible for the toxic effect. ठीक है. ये बेसिकली उनके लिपोप्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स जो उन्हें पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करती हैं. लिपोइड ए फंक्शन क्या है सेल वॉल का? द सेल वॉल मेंटेन्स द ओवरऑल शेप ऑफ द बैक्टीरिया. ये है बात जो आपके याद रखने की, ओवरऑल शेप को मेंटेन करती है. द सेल वॉल इज एन एसेंशियल स्ट्रक्चर that protect the cell protoplasm mechanical damage and from the osmotic rupture or lysis. ठीक है. उसको ऑस्मोटिक रप्चर से या फिर लाइसिस से बचाती है. ओवरऑल क्या करती है? शेप मेंटेन रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज से, ऑस्मोटिक रप्चर से या लाइसिस. ठीक है जी. ये आपका हो गया लेक्चर नंबर 5 कवर. यहाँ तक हमने बैक्टीरियाज पढ़ लिए. अच्छा, बैक्टीरिया की यूजफुलनेस और हार्मफुलनेस है, बट मेरा ख्याल है कि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है. अभी फिलहाल यहाँ तक का बैक्टीरिया आपका लेक्चर 5 कवर हो गया. कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.